Respected all, इतने समय तक आप लोग ने अमित सरोवर कैसे हुआ, कैसे करना है, सब कुछ हम लोग सीख लिया। लेकिन अभी अमित सरोवर ये सब करने के बाद हम कैसे इसको इस्तेमाल करूँगा, कैसे ये फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए कैसे ये हम लोग यूज करूँगा, हम लोग असम में क्या कर रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा आप लोग को आगे में देखना चाहता हूँ मैंने। Uh, uh, as we know that Amit Sarovar is an initiative not just about water conservation. It is not just water conservation infrastructure, but it is also a commitment to sustainable development, economic empowerment, and environmental balance. In Assam, it is conceptualized with minimum 1 hectare of pondage area, 3 layers of commercial plantation, fencing, flag hosting platform, rocking shade for user groups, and solar light. Implementation of Amit Sarovar in Assam is done in convergence with the Fisheries Department, Chief Minister's Samagra Gramya Unnayan Yojana Fund, and ASRLM by Panchayat and Rural Development Department. In program-wise, it is convergence with CMS GAI, MG NREGA, and Finance Commission Grant Fund. In Assam, we have executed total of 2,966 Amit Sarovars. However, our target was 2,625. We have the following components: Amit Sarovar execution work and input subsidy. It is executed through the Chief Minister's Samagra Gramya Unnayan Yojana Fund, and working set, iron gate fencing, flag hosting platform. It is implemented through Mahatma Gandhi and NREGA. Solar light is implemented through solar light. It is Finance Commission Grant Fund. We have, this is already, we have shown it there. Out of 2,966, we have executed Amit Sarovars. In our PNRD department, we have executed 2,788 Amit Sarovars, and 179 Amit Sarovars have been executed by other departments. This is about ownership of management of Amit Sarovars in Assam. In Amit Sarovars constructed in various type of lands. It is government land, forest land, government institution land, religious land, and tree gardens land. Amit Sarovars, which is executed in a government land, these Amit Sarovars have been handed over to cluster level federation under ASRLM or village committee for long-term sustainability. And Amit Sarovars, which are in the institutional land, religious institutional land, and tea garden areas, this will be managed by the concerned authorities. And Amit Sarovars, which were executed in the forest land, this has been handed over to the forest department. And as per our record, we have 2,120 numbers of Amit Sarovars in government land, and out of this, we have 1,426 Amit Sarovar have been handed over to cluster level federations for economic activity, and 619 numbers of Amit Sarovar has been handed over to the village committee till now. And out of these, 1,226 Amit Sarovars already have been initiated economic activity through pisciculture activity. And regarding the profit sharing, 25% of net profit earned by the CLF and village committee have to be provided to the concerned Gram Panchayat authority. And you may know that all Amit Sarovars have not succeeded till now. There is certain issues regarding water retention capacity. Some have the seasonal water availability and some has perennial water availability. In the perennial water availability, we have doing the pisciculture activity, and in the seasonal water availability, there are some issues. Therefore, we could not initiate the pisciculture activity till now.
These are some success stories of the Amit Sarovars. This is about a Amit Sarovar executed in the forest land, where the wild elephant has used to bathing there, and Honorable Prime Minister Sir has tweet in this matter. This is the tweet of Honorable Prime Minister Sir. Thank you. This is all about the Assam Amit Sarovar. गुड आफ्टरनून। छत्तीसगढ़ से मेरी टीम में सोमकांत साहू जी मौजूद हैं, विभास तिवारी मौजूद हैं, मैं विनय गुप्ता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ, SNO हूँ अमृत सरोवर के लिए। मैं छत्तीसगढ़ से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लाइवलीहुड लिंकेजेस के साथ में जो काम किए गए हैं उनको मैं दिखाऊंगा। बाकी तो सभी स्टेट्स में ये सब काम हुए हैं, एक जस्ट ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ मैं। और जैसा कि अमृत सरोवर नाम है तो अमृत छलक रहा है, वो लाइवलीहुड के रूप में छलका है, कहीं आप देखिए कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रूप में हो रहा है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के रूप में हो रहा है। तो आपको एक जर्नी में ले चलता हूँ। आइए नेक्स्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे पहले बालोद दिखाएंगे। नेक्स्ट सर। ये बालोद डिस्ट्रिक्ट से है। पहले की कंडीशन, बाद की कंडीशन। वाटर स्केर्सिटी होती थी, ड्राई पॉन्ड रहता था। फिर जब हमने जलदूत ऐप से देखा तो 0.9 मीटर दिख रहा है, प्री के साथ में रिलेशन देखा, और पोस्ट मानसून के साथ में तो इतना लगभग बड़ा है। इरिगेटेड एरिया भी बढ़ा है, 55 एकर्स हो गया है। 145 हाउस होल्ड्स बेनिफिट हुए हैं, उसको काउंटिंग किए हमने। छत्तीसगढ़ के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में सभी में देखा कि क्या क्या स्थिति हो रही है सब लाइवलीहुड के सारे पैरामीटर्स में। फिशरीज में कॉस्ट लगाई 90,000 और 1.5 लाख का करीब एस्टिमेट है प्रॉफिट का। तो पहले साल में फिशरीज में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें गोबर चूना वगैरह सब डालना पड़ता है, उसको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। फिर ऐसे ही डक फार्मिंग में अच्छा रहा है। फ्लावर फार्मिंग भी बहुत अच्छा है, गेंदे के पौधे और ये सब। SHGs इसमें बड़ा ध्यान दे करके काम कर रही हैं। हमने एक काम ये भी किया छत्तीसगढ़ में कि जो पोटेंशियल लखपति दीदीज हैं, PLDs, उनके साथ में लिंकेजेस करने की कोशिश किया, जिससे कि लखपति दीदी बनने में उनको और मदद मिलेगी। तो ये सब फोटोग्राफ्स हैं और ये सक्सेस स्टोरी अपने आप में एस्टेब्लिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वयं SHGs ने इनिशिएटिव लेके काम किया है। हम लोग को बस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बार बार विजिट करना होता है। एक बार MORD की एक सामर्थ की ट्रेनिंग थी, तो उसमें प्लांटेशन के लिए एक एक्सपर्ट ने पूछा था क्वेश्चन कि सबसे बढ़िया खाद कौन सी होती है प्लांटेशन के लिए। सब कोई FIM कुछ और सब चीजें बताते रहे। उन्होंने बोला आपके जूतों की धूल, आप बार बार तशरीफ ले जाइए तो नर्सरी बढ़िया अपने आप में हो जाएगी। तो यहाँ भी यही है कि अमृत सरोवर में जितना हम जुड़ेंगे, बार बार जाएंगे, तो हमारा अमृत सरोवर बढ़िया बनते जाएगा। तो यही यहाँ पर भी काम किया है। और स्वयं अब गांव वाले अपने आप कर रहे हैं। और 4 तो आपने डेज मैंडेटरी कर रखे हैं कि योगा डे, एनवायरमेंटल डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो बाकी दिन भी गांव वाले पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअली में इसमें बहुत बड़ा रोल जो था, बड़ी नाइसली कार्व्ड आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस थी, वो बहुत किरण पादी जी को थैंक्स। आपने जो पहली गाइडलाइन निकाली, फिर इसके जो टेक्निकल और एडिशनल गाइडलाइन निकाली, फिर बाद में जो अमृत सरोवर सेकंड की गाइडलाइन निकाली लाइवलीहुड वाली, तो बस उसको यदि कोई फॉलो करते चले जाए तो सब अपने आप होते जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जन भागीदारी ही सबसे बड़ी चीज है इसमें, क्योंकि हमेशा तो कोई रह नहीं सकता, जनता ही वहां पर करेगी काम, उनको खुद ही करना है। कन्वर्जेंस के इनिशिएटिव हमने किए। हर डिस्ट्रिक्ट को अपने आप, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इसलिए हमने सबको फ्री छोड़ दिया कि किसी के पास DMF है, किसी के पास CSR है, किसी के पास पंचायत से कोई फंड है, 15 फाइनेंस है, जो उसको जैसा करना करे। तो सब अपने अपने मॉडल लेके आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मॉडल हो गए, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी ने
देखिए इसमें फुटपाथ लगा दिया, क्योंकि नरेगा में पेड़ ब्लॉक लगा नहीं सकते, बेंचेस लगवा दिए, लाइटनिंग अरेंजमेंट रात के समय में भी अच्छा रहता है, एसएचजी के सेट लगा दिए कम्युनिटी एसेट्स के रूप में, और कम्युनिटी सेंट्री कॉम्प्लेक्स की जब जरूरत होती गई उसको लगा दिया। तो फाइंडिंग द नीड एंड फिलिंग इट ऐसा चलते गया इसमें, और अपने आप आगे बढ़ते गया, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहा। नाइट व्यू बहुत अच्छा दिखता है। क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि पानी नहीं है, बिन पानी सब सुन, तो क्वालिटी के लिए जो 7 मेजर फैक्टर्स हैं, जिसमें बहुत रिगरस सब जगह टेस्ट किया देखा, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कई जगह पानी नहीं भरने की भी बात आ रही है। तो एक्चुअली में जब बाइजेक से सर, जब हमको साइट्स मिली, पटेल साहब आपका ध्यान अटेंशन करना चाहूंगा सर। जी सर, क्योंकि जब बाइजेक से जब हमको पता चला कुछ साइटें, तो कुछ साइटों में ना कई साइटें एकदम अच्छी सुटेबल नहीं सेलेक्ट हो पाई, कुछ ना कुछ दिक्कतें रही इतने बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट में। 2902 हमने बनाया फर्स्ट फेज में, तो अब उसमें पानी जैसे नहीं है कहीं में, तो हम देख रहे हैं कि कुछ तो ऐसा था कि जीआईएस का इशू था, कि जीआईएस लोकेशन कहीं इधर पड़ रही है और अमृतसर कहीं वास्तव में दूसरा है, तो वहां पानी भरा दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए जो एल्गोरिदम चलाया उसमें नहीं दिख रहा था। दूसरा कई जगह ये भी था कि वास्तव में ड्रेनेज एरिया का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो वो एरिया ट्रीटमेंट और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट करके और ठीक करेंगे। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि यदि हमको कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट मिले युक्त धारा में, कि अमृत सरोवर में कृष्ण सर, कि अमृत सरोवर में यदि पानी और लाना है और उसको हम एनालाइज करें, और उसमें क्या वर्क हम वहां सेलेक्ट करें एरिया ट्रीटमेंट के और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के, ताकि पानी आ जाए, तभी यूटिलिटी बढ़ पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम चाहेंगे कि धारा में हम करेंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल हो जाएगा तो हमारा सब में अच्छे से, क्योंकि पानी लबालब आए तब तो कोई मतलब है, 10,000 क्यूबिक मीटर होना बहुत जरूरी है। सिल्ट रेस्टिंग चैम्बर है, सब है, लेकिन उसके पहले हम यदि थोड़ा प्लांटेशन और अच्छी सी यदि ट्रेंचेस वगैरह बनाएंगे, तो फिर सिल्टिंग कम होगी। तो ये थोड़ा सा अमृत सरोवर स्पेसिफिक हमको युक्त धारा पे भी काम करना है, जैसे कि आज अभी चर्चा चल रही थी। तो ड्यूरेबिलिटी वाली बात आ गई, असेसमेंट जो है बेनिफिट का, उसको हम करते रहे, जैसा भी डिस्कस किया था कि इरिगेशन तो होता ही है उससे निश्चित रूप से। तो अब हम एक नेक्स्ट स्टेज में बाइजेक से मैं यही अभी चाह रहा था सबसे पटेल साहब से, कि जैसे अमृत सरोवर के डाउन स्ट्रीम में जो हमारे ओपन वेल्स हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करके दे दें, ताकि हम उसको थोड़ा ध्यान दे दें, ये भी मैं नोट कराना चाहूंगा। हाँ, ताकि हमको पता चल जाए कि उस अमृत सरोवर के उसके जो डाउन स्ट्रीम में है, उसको हम अच्छे से और देख लें, तो हमको 3-3 हुआ सब अलग से आइडेंटिफाई होकर ब्लिंक हो जाए, वो ब्लिंक हो जाए सर, तब फिर हम उसको और अच्छे से नापेंगे। ये इतने तरह का देखिए सर, सिनर्जी ऑफ कन्वर्जेंस कितनी बढ़िया है। मात्र हमने 19 लाख रुपए लगाया नरेगा से, और इधर प्लांटेशन कर दिया 4 लाख का, बाकी और पूरा हमको दूसरे फंड से मिल गया। तो ओपन जिम भी लगा दिया, स्ट्रीट लाइट लगा दिया, सब चीज कर दिया, फेंसिंग अलाउड नहीं है तो प्लांटेशन की फेंसिंग दूसरे से कर दिया। तो इस तरह से चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, सभी के साथ में रहते हैं, उसको हम वन बाय वन दूर करते गए। यही सब लर्निंग रही कि सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमने बालोद का देखा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भी काफी अच्छा काम हुआ है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, एग्रीकल्चर एरिया पे बहुत असर पड़ा है, अच्छा फार्मर्स बेनिफिट 30 हुए हैं, इनकम भी इनकी बढ़ी है। एसएचजी को तो बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेना यहाँ पर अच्छा लगा, और उन्होंने रायगढ़ में काफी ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और सब बेनिफिट जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने वाले, ये बढ़िया रहे। ओपन वेल का मेजरमेंट लेते हुए चेकलिस्ट भी बना दी थी कि किसने क्या क्या बनाया, फुटपाथ हुआ कि नहीं हुआ, बेंचेस हुए कि नहीं हुए, तो जहां जो था वहां उन्होंने कैंडिडेटली बताया। पीएलडी के साथ जो लिंक का बता रहा था ना, इसको भी हमने मैप करने की कोशिश की है। फिशरीज तो नो डाउट सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी में हो जाता है। एसएचजी सेट बनाया, टॉयलेट्स वगैरह भी बना दिए वहां। ये राजनांदगांव का है, इसमें अभी दोनों में तो मैंने लाइवलीहुड के डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाए थे, इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि कैसे एसएचजी को उनको सबको इन्वॉल्व करते हुए
एक साथ लाए हैं। शुरू में ही एरिया वगैरह सब उसका नक्शा खसरा लेकर के सिक्योर में डाले, प्रॉपर्ली उसके एस्टिमेट बनाए, टेक्निकल सैंक्शन हुई, ड्राइंग डिजाइन वगैरह ठीक से बना दिए, मेजरमेंट प्रॉपर्ली किए। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मस्ट्रोल लोगों का पार्टिसिपेशन 100% कोशिश किया ताकि जल्दी बने। ये पंचनामा बना दिया कि कोई बाद में विवाद नहीं हो, किसको दे रहे हैं, मशवरा संघ को दिए, किसको दिए, यूजर ग्रुप में। फ्लैग होस्टिंग तो होती है सब जगह। पीएलओस को ट्रेनिंग दिए, इंस्पेक्शन नोट भी लिखे जब भी अधिकारी गए उसमें। बस इतना ही है।